Guys, I want 1 minute. 1 minute. Give me 1 minute break, please. That is. So all of you are ready to celebrate Holi? Yes. वैसे आप लोग क्या everywhere when is the Holi festival? Because someone are telling it is on 7, somebody on 8. तो बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग को डिसाइड करने की है कब एक्चुअली. So when are you guys playing Holi or celebrating Holi? 8, both the days. Both the days. Oh, great. तो होली शुरू हो जाएगी आज से. Great. Guys, thank you for your patience. And here I'm going to share with you all. This is Save Mind. How can we save our mind? So this campaign I started recently because after speaking a lot over the save mind, I thought this is very much important to practice saving mind on the daily basis. Why? जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी हर मोमेंट कहीं भी दिख गया तो हम जाके क्लोज कर आते हैं, वैसे ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं, पानी बह रहा है तो बंद कर देते हैं, अर्जेंसी में कर दे, सेम ही उतनी अर्जेंसी आपको अपने माइंड के लिए लानी पड़ेगी. व्हेन यू फील कि मेरा माइंड स्ट्रेस में है, ट्राई टू डू फिक्स इट सेम टाइम. क्लियर? अगर इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ होना क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आएगा इसके लिए बंद कर देते हो, आप वाटर को बंद कर देते हो क्योंकि पानी बह जाएगा, टंकी खाली हो जाएगी, इसके लिए कर देते हो, तो लेट मी टेल यू, अगर आपने माइंड स्ट्रेस में है और उसको वापस से कम बैक नहीं किया पीसफुल माइंड में, तो आपके भी बॉडी में बहुत सी चीजें होना बंद हो सकती हैं. सीमा इज ऑलरेडी telling you, if your mind is here not happy, there are so many diseases you start attract in your life, right? Because you didn't switch off the stress mode, because you didn't on the light of happiness in your mind. That's why it started happening. So always try to save your mind every day, every moment. How to maintain your mental health? Let me give you few example how to maintain. So again I'm telling you how are you feeling today is all about the 2 minute spend with yourself and start acknowledging who are you right now. So suppose it's early morning, we are together, close your eyes. I am asking for your 2 minutes. So close your eyes, you put your both hands on your heart and ask with yourself, how are you? When you ask with yourself, answer will come. And try to take your name. मैं अगर ऐसे ही किसी बुला दूं, सुनो इधर आओ, वहां पे 7 people are there and भाई से सुनो इधर आओ, तो कौन आएगा? कोई भी आ जाएगा ना. नहीं समझ में आ रहा ना, there is confusion. So when you're talking with yourself, just call your name. This is very, very good trick. When you ask, hey Natasha, how are you? You will get a quick answer. Even your cells, your body cells start giving you answer. Try this. It's a magic. Just close your eyes and say, ask your name loudly. Hey Indu, how are you? And you'll get answer. Not good. Okay. I'm feeling excited. I'm very happy. You'll get such kind of answer. So whatever answer will come, you have to act according to that. You have to actually come in the shield mode. Okay, so if you're feeling not good, just hold your shield to save your mind. If you're feeling rush, sit down properly and talk with yourself. Why are you in rush? If you are feeling okay,
दैट्स ओके, गुड. इज इट गुड? ये ठीक हो सकता है, बेटर हो सकता है. यू कैन थिंक अबाउट इट फॉर 1 minute. ओके, एंड देन इफ यू आर फीलिंग गुड, दैट्स गुड. इफ यू आर फीलिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा है. तो इस तरह की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही मिनट चाहिए. क्लोज करेंगे अपना आईज और अपने दिल को, अपने दिल पे अपने दोनों हाथ रख के जब आप अपने आप से बात करेंगे तो आंसर तुरंत आ जाता है. इतना कम टाइम लगता है खुद से बात करने में, बिकॉज हियर यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एनी समवन एल्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली टू यू, राइट? सो इस तरह की फीलिंग्स अगर आपको अपने बच्चों में या फैमिली फ्रेंड्स में, स्पाउस में भी अगर दिखती है तो यू कैन आस्क, पूछो. मैंने कहा ना, किसी दूसरे के घर का भी बच्चा रोता रहता है तो कोशिश करते हैं जाके चुप करा दे. तो इट कुड बी कि समवन एल्स माइंड आल्सो इज क्राइंग, समवन एल्स माइंड इज आल्सो इन स्ट्रेस. इफ यू एक्नॉलेज इट, just give some moment of appreciation and acknowledgement. Come to the next slide. This is something you feel कि मैं कैसे जानूं कि मैं स्ट्रेस में हूं, या मैं कैसे जानूं कि मुझे अपने माइंड को सेव करना है. आई रियली नीड हेल्प. हियर आर फ्यू साइंस when your mind actually in the war, वो जंग में खड़ा हुआ है और उसके ऊपर इधर से फायर उधर से फायर शुरू हुई है. What is that? Those signs. My body feels heavy and tired. I can't motivate myself. I find it hard to respond to message. I can't stop scrolling through social media. I feel like nothing I do is good enough. I have panic attacks. What is the panic attacks? 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल की बात आप पाइल अप कर रहे हो, जिसने आपको हर्ट की थी, एंड सडनली आप फूट पड़ते हो. किसी ने लगता है पिन चुभा दी हो छोटी सी बात पे. कितनी बार होता है, मेरे साथ बहुत हुआ करता था, बहुत ज्यादा हुआ करता था कि जिस बात पे मैं गुस्सा होती थी 4 महीने पहले, तब तो मैंने नहीं बोला, पर अभी तो वो बात भी नहीं है. बट समवन आस्क मी 2 or 3 टाइम्स एंड आई, ऐसे क्यों करते हो, पहले क्यों किया था तुमने, वो नहीं किया था. पीपल इवन डोंट रिमेम्बर, मुझे जो जो याद होता था. एंड देन आई वाज थिंकिंग, अरे मैं इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, इनको ये बात याद नहीं है. इवन आई नेवर एवर थॉट कि मैंने क्यों इतना याद रखा जब इतना पेनफुल था. सो वन मोर सिम्टम इज हियर कि हम हमेशा ही दूसरों को ब्लेम करते हैं व्हेन वी आर इन स्ट्रेस, क्योंकि हमारे माइंड के पास इतना इतना मतलब पावर ही नहीं रहता है कि वो खुद को एनालिसिस कर सके. तो जब खुद का सिस्टम फेल हो जाएगा तो यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स. Got an idea? Fine. So little thing get to me, and I spend more time by myself. And this is the different kind of time spending. You are spending more time by yourself, but alone. You don't feel good, and you don't want to come out from house, or you don't want to come out from your room. Your comfortable zone. इस तरह का भी अगर आपको स्ट्रगल आ रहा है, means you are facing problem, your mind is in stress. I find it hard to get up and ready in the morning. My usual coping mechanism, look here, आपका coping mechanism था, एक टाइम ऐसा था, आप पीछे जाओ, एक टाइम ऐसा था कि जब कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो I was the first one to manage everything. But today why I am not able to manage it? अभी भी आप वही हो ना, but maybe some scenario got changed, maybe some people around get changed. Maybe what is that? What kind of feeling are you having right now? Just talk with yourself. Okay. And another thing is what things become disorganized and untidy for me. I can't focus or still my thoughts. I doubt myself. If you have such kind of feeling, you are actually facing problem. Actually, you are facing mental stress. So please, this is the high time to save your mind. One more kind of situation we most of the time feel. How are you hearing this? अगर आपको इस तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं, that is the gaslighting. What is the gaslighting effect? किसी ने मजाक किया आपसे, but still you are hurt.
और जब आपने कहा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो सामने वाले ने बोला मैं तो मजाक कर रहा था। तो यू एक्चुअली फील एम आई फूल, राइट? आपको बुरा भी लगा और वो मजाक भी था। वो कैसा मजाक था जिसने आपको हंसाया नहीं, बट आपको वापस स्ट्रेस में डाल दिया। तो इस तरीके की बातें जो किसी ने आपको टॉन्ट में दे दिया, बस बोला अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, या ऐसा मजाक जो आपको हर्ट कर दे, सच काइंड ऑफ सिनेरियोज आर द गैस लाइटिंग इफेक्ट। सो यू आर बीइंग ड्रामेटिक। किसी ने बोला बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही हो, इतना क्या खुश होने की जरूरत है, इतना क्या रोने की जरूरत है, इतना क्या बोलने की जरूरत है, इतना क्या रिएक्ट करने की जरूरत है। इस तरह के वर्ड्स आप बहुत सुनते होंगे। देयर इज समवन एल्स हु इज ट्राइंग टू टेल यू कि कितना कितना मेजरमेंट में आपको अपना इमोशन एक्सप्रेस करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज एक्चुअली रबिश। कोई और आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, कि 2 नंबर पे आएगा कि 10 नंबर पे आएगा। देयर इज नो मेजरमेंट। बट व्हेन समवन ट्राई टू से लाइक दिस, यू एक्चुअली डोंट फील गुड, बिकॉज वो आपके इमोशंस ओरिजिनल थे, आपने दिखाने के लिए नहीं किए, राइट? हो सकता है कि कोई चीज आपके लिए नहीं हो तो यू बिकम सो हैप्पी, वाओ, एंड समवन इज, बहुत कॉमन है यार, इतना क्या, राइट? ऐसे ही होता है ना। बट देन इट्स हर्ट यू। व्हाई इट्स हर्ट यू? बिकॉज आपका अपने इमोशंस भी वहां पे एक्सप्रेस करने का आपको अलाउ नहीं है। तो इस तरह के इफेक्ट से भी हम बहुत हर्ट होते हैं। अगेन योर माइंड इज स्ट्रेस, की कोई हमें वैल्यू नहीं देता है, कोई हमें समझता नहीं है, मेरी बात की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, मैं खुश हूं तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस। कम टू द अनदर पॉइंट, हाउ कैन यू चेक इट? लेट्स चेक अगेन। फीलिंग ग्रेट, वेरी गुड, प्रिटी गुड, वेरी गुड, डूइंग ओके, वेरी गुड, बट अब इट कुड बी बेटर। अगर ऐसा सिचुएशन आपको लगता है नहीं थोड़ा ठीक हो सकता है, यू कैन टॉक विद योर कोच, देयर इज सीमा। सपोज इफ यू फील आई नीड सपोर्ट, टॉक विद योर कोच, टॉक विद योर फैमिली। अगर कोई फैमिली फ्रेंड है जो अच्छा सोचता हो, अच्छा बताता हो, डोंट बिकम सो मेसी कि किसी से भी बात कर लिया, मत करना किसी से बात, ठीक है? उससे ही बात करो जो आपको राइट डायरेक्शन दे, जिसके साथ आपको अच्छी वाइब्रेशन फील हो, कि वो तो कुछ अच्छा सोल्यूशन ला के दे। And if you really is feeling, if you feel struggling, please talk with someone who can help you. This is very, very much important. आप ही ने मुझे सबसे पहले बताया कि human life actually matters a lot, and you are the human. So you start with yourself. अपने आप से शुरू कर दो। If you are feeling lonely, कॉल समवन टू से हाय। किसी को तो बात करो। और अब तो आपके पास ट्राइब है। मैं सोचती हूँ चलो पहले नहीं रहा होगा, ढंग के लोग ही नहीं होंगे जिनसे आप बात करो, नहीं दोस्त अच्छे थे, बट अभी सपोज सीमाला के पास अपनी एक ट्राइब है, वहां 3 लोग भी होंगे। तो थिंक ना, एवरीवन केम हियर फॉर सम सोल्यूशन। तो आप किसी को भी फोन करके बोल सकते हो ना। नहीं कोई है तो यू हैव योर कोच, टॉक विद योर कोच। फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, डू अ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। एंड नेक्स्ट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेक अ वॉक। व्हाई डू आई से टेक अ डीप? आपने देखा बहुत लोग परेशान से होते हैं तो वॉक करना शुरू कर देते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप वॉक नहीं कर रहे हो तो आप सप्रेस कर रहे हो। तो वॉक करना शुरू कर देते हैं। डीप ब्रीदिंग इज ऑल्सो गुड प्रैक्टिस। टेक अ इनहेल, डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल। ओके, सो इट वर्क्स एक्चुअली। तो जब हम वॉक करते हैं ना तो हमारा माइंड बेस्ट फॉर्म में होता है और बहुत अच्छे से आपको आंसर करता है, बहुत अच्छे से आपको गाइड करने के लिए रेडी होता है। दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द साइंस। व्हेन वी वॉक आवर माइंड वर्क्स बेटर। व्हेन वी स्लीप एक्चुअली आवर माइंड ट्राई टू स्लीप। फाइन। ओवरवेल्म्ड तो अपनी बॉडी स्ट्रेच करो। बॉडी स्ट्रेच करने का मतलब ये नहीं कि मुझे योगा ही करना है। यू कैन डू डांस ऑल्सो, यू कैन गो इन किचन, डू सम हाउस होल्ड चोर्स ऑल्सो, you can declutter your room also. Okay, you feel कि declutter करते करते रूम हमारा माइंड भी थोड़ा सा पीसफुल हो गया है। इवन if you have some little child, you can play with your child, you can cuddle with your child, that is also stretch your body. Okay, come to the another point. कभी कभी हमें लगता है यार हम रेस्ट कर रहे हैं तो हम रुक गए हैं क्या, या हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया बिजी है, किसी को भी फोन लगाओगे आई एम बिजी,
मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है. एंड दैट काइंड ऑफ टाइम पीरियड अगर आप रेस्ट में हो तो डोंट फील गिल्टी. लोग नॉर्मली गिल्टी फील करने लगते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, पूरी दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है, आगे बढ़ी जा रही है, व्हाट डू आई डू. तो इस तरह का जब सिनेरियोज आपके पास आता है, तो व्हाट आई वांट टू सजेस्ट, हर चीज इम्पोर्टेंट है. चलना इम्पोर्टेंट है तो थोड़ी देर रुक कर बैठना भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू गेट एनर्जाइज अगेन, राइट. तो हर चीज का इम्पोर्टेंस है. जैसे आप पूरा दिन में देखो ना, पूरे दिन जगना काम करना इम्पोर्टेंट है, तो सोना भी तो इम्पोर्टेंट है. आप सोते हो, यू रिचार्ज योर सेल्फ एंड कम बैक अगेन. तो अगर लाइफ में ऐसा मोमेंट आ जाए बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया कि बेड रेस्ट हो गया है, या कोई रीजन की वजह से आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो आज आप काम नहीं करने का मूड है, बी ओके, बी इजी. बहुत इजी है ये. और आपको करना क्या है, आप उसमें भी अगर आप कुछ को कुछ करना है, तो जब आप लेटे हो, जब आप रेस्ट ले रहे हो, तो एक्चुअली फील द कंफर्ट. एक्चुअली फील द कंफर्ट वट एवर यू आर डूइंग. फील द ग्रेटिट्यूड. बहुत अच्छा है भैया, आराम मिला है, इतने दिन से चल ही रहे थे, इतने दिन से काम कर रहे थे, अब आराम मिला, मैं अच्छे से आराम करूंगी, मेरा बॉडी जब हील हो जाएगा, मैं एनर्जाइज फील करूंगी, देन आई विल कम बैक. So you have to feel comfort. You have to feel hope also. कि ओके, ये जो रेस्ट है ये इसके लिए मुझे मिला है कि आगे मैं वापस से रीस्टार्ट करूं बेटर वे में. यू कैन कीप अ होप ऑल्सो. यू बिकम अ इंस्पिरेशन एंड यू कैन इंस्पायर्ड बाय समवन एल्स. वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि आप रिफ्लेक्ट करो कौन कौन से लोग हैं जिनसे आप बहुत इंस्पायर हो, या किसी को इंस्पायर करना चाहते हो, तो व्हाट आर दो टास्क जो आप करना चाहते हो. फॉरगिवनेस, दिस इज अ वेरी गुड टास्क. बहुत अच्छे से कर सकते हो व्हेन यू आर इन अ रेस्ट मोड. हाउ टू डू. बच्चा हमें बहुत दौड़ाता है, कुछ चीज मांग रहा है, तो क्या होता है, हम दौड़ रहे थक जाते हो, कहते हैं यार अच्छा ले लो, कौन इतना दौड़ रहा है. बोलते हो आप ऐसे, करते हो ना कभी कभी. या कोई आपसे किसी चीज की बहुत जिद कर रहा है, तो हम कहते हैं छोड़ो यार, कौन इतना बहस करे, ले लो. फॉरगिवनेस कुड बी लाइक दिस. जब आप रेस्ट भी कर रहे हो तो सोचो कौन कौन है यार जिसने बहुत ज्यादा जिद की मुझसे चीज पाने की. कौन कौन है यार जो जिसने बहुत ज्यादा जिद की मुझसे, मुझे मनाने की. कौन है जिसने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मैं वापस आ जाऊं, या मैं मान जाऊं, या मैं खुश हो जाऊं. माफ कर दो उन्हें ना, माफ कर दो. कहो ठीक है, ले लो, क्या चाहिए था, खुशी चाहिए थी मेरी, ले लो. बात करना था मुझसे, ले लो. तुम्हें मुझसे ये सामान चाहिए था, ले लो. क्या हो जाएगा, अगेन इट डू नॉट कॉस्ट योर लाइफ. अगर मैं हमेशा ही कहती हूँ, वो हर चीज दे दो, थोड़ा सा रजिस्ट करके भी देना एक अच्छी मतलब स्टाइल है. ना 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 करके हाँ कर देना भी एक स्टाइल है. कुछ भी बुरा नहीं कि पहले ना बोला था तो अब हाँ नहीं बोल सकते, राइट. या पहले हाँ बोला था तो अब ना नहीं बोल सकते. तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर आपकी मान हानि नहीं हो रही है, इज्जत नहीं जा रही है, नाक नहीं कट रही है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो दे दो यार, ले लेने दो. जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, ये डायलॉग बहुत अच्छा है. जाओ ले लो, ले लो, तुम भी क्या सोचोगे किससे पाला पड़ा है, किसने दे दिया. बी फील ग्रेटफुल विद इन योर सेल्फ कि यार देने की भी मैं, मतलब जो इम्पॉसिबल था वो भी मैं दे सकती हूँ. फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, दे दो. एंड देन कम टू द मोटिवेशन टाइम. आप अपने आप को, जब आपका बॉडी रेस्ट में होता है, इस तरह का रेस्ट में कि आप कॉन्शियस हो, तो वो बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहा होता है. आपने देखा बहुत सारे आइडियाज आते हैं जब हम थोड़ा बैठते हैं अपनी शांति से. तो मोटिवेट योरसेल्फ विद दोज आइडियाज. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फील पीसफुल. डोंट बी इन रश कि सब करना है, रह गया है, छूट गया. नो नो नो, नॉट एट ऑल. बहुत बड़ी है जिंदगी है, राइट. तो अगर रेस्ट मोड भी आया है तो बेस्ट मोड भी आएगा. दिस इज वेरी गुड डायलॉग, आई नीड टू राइट इट. अगर रेस्ट मोड भी आया तो बेस्ट मोड भी आएगा. जस्ट बी होपफुल फॉर दैट. ओके, कम टू द अनदर पार्ट, एन आर्मी ऑफ थॉट प्रोसेस. हम कहते हैं ना कि जब आपको गन चल रही है,
लोग आपको ट्राई कर रहे हैं कि लोग ट्राई नहीं करते इंटेंशनली, कभी नहीं होता, बट इफ यू फील कि अरे मुझे आई एम नॉट फीलिंग सेफ, आई एम फीलिंग ट्रिगर्ड, आई एम फीलिंग सो स्ट्रेस, तो अपनी एक आर्मी बनाओ। अपनी आर्मी किस चीज की? थॉट प्रोसेस की। अपनी थॉट प्रोसेस की एक आर्मी बनाओ जो आपको शील्ड कर सके। ओके तो कैसे शील्ड करेगी? किस टाइप के थॉट प्रोसेस लाने हैं? आई एम अवेयर दैट देयर इज सफरिंग। हमको पता है सफरिंग है सब जगह, कुछ नया नहीं बता रहा है कोई, कुछ नया नहीं है, ऐसा होता है। दिस इज नॉर्मल, आई एम नॉट अलोन इन दिस। बहुत नॉर्मल है, मेरे अकेले को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दुनिया में हर कोई दवा खा रहा है, दुनिया में हर कोई तबीयत खराब होती है, दुनिया में सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। इट्स नॉट इजी एंड आई डिजर्व काइंडनेस। आई कैन मीट दिस पेन विद द केयरिंग एंड वार्मथ। जो भी आएगा आने दो, मुझसे बड़ा कुछ नहीं है। आई एम गोइंग टू सर्वाइव। अगर इतनी लाइफ में हर्डल्स होने के बाद अगर आप आज सर्वाइव कर रहे हो ना, तो यू आर ऑलरेडी वॉन द रेस। रेस में तो पहले ही जीत कर बैठे हो। अब तो आप एज ए ऑब्जर्वर देख रहे हो, अच्छा और दिखाओ। हाँ, यूनिवर्स इज टेस्टिंग मी, कम बैक। बुक ना डायलॉग तो बहुत अच्छा। यू आर वेरी चालू बॉस, वी आर, यू आर वेरी चालू, so you can start saying to universe also, you are very chalu, you are giving so many stones to me and I am here with my shield. लो लो लो, मैं तो बच गई। So I deserve kindness, I can meet this pain with the caring environment. दो ही चीज होगी, या तो हक कर लो, ए जिंदगी गले लगा ले, और या तो ये बोलो कि छोड़ो मैं तो बच जाऊंगी, आई हैव माई ओन शील्ड, राइट? And another thing is what I will focus on elevation and take step to address the problem. मैं जो भी मेरे पास प्रॉब्लम्स आएगी उन्हें एड्रेस करूंगी एंड आई विल गेट द सोल्यूशन। आई एम ऑलवेज बी इन अ सोल्यूशन मोड। डू थिंग्स दैट मेक क्योंकि बहुत इजी है, वो काम जरूर करो अपने लिए जो आपको अच्छा लगे। और अच्छा आपको लगे इसका मतलब ये नहीं किसी को बुरा लग जाएगा। इस माइंडसेट से निकलो कि यार मैं ये करूंगी तो इनको तो बुरा लग जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, करके देखो, जिसको जो चीज बुरी लग रही है उसको उसके सामने दूसरी तरीके से कर दो। बट अगेन आई विल टेल यू, फोकस ऑन योरसेल्फ, रेस्ट वर्ड विल एडजस्ट। ओके, अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो सब कोई एडजस्ट कर सकता है। नोट टू योरसेल्फ, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, it's okay to ask for help and you are worthy and lovable. You are capable of amazing thing because we are human life. हम सब कुछ कर सकते हैं। So recognize your power. It's okay if you have a bad day. बहुत नॉर्मल है। Make mistake. Mistakes करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? और जो कुछ नहीं करता उसी से mistakes नहीं होती, by the way. So always feel proud when you do mistake. आर लेस देन परफेक्ट। ऐसा नहीं कि परफेक्ट सब कुछ होता है, थोड़ा सा कम भी होगा, दैट इज ऑल्सो अ बिग स्टार्ट। ओके, एंड आस्क फॉर पर्सनल स्पेस। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो से आई वॉन्ट टू सिट 15 मिनट विद माई सेल्फ, प्लीज गो बैक। कोई बात करने की कोशिश करो, प्लीज लीव मी फॉर अलोन फॉर 15 मिनट टुडे। गुस्से मत बोलना, नहीं लोग डर जाएंगे। छोड़ दो मुझे 15 मिनट के लिए, तो लोग डर जाते हैं, क्या क्या करने वाले। आप बोलो भाई यार मुझे 15 मिनट दे दो, थोड़ा सा मुझे सुकून चाहिए, 15 मुझे थोड़ा लेटना है, देन आई विल कम बैक। ऐसे बोलना है। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। कुछ भी हो अपने आप को हक करो। कोई भी प्रॉब्लम फील कर रहे हो अपने आप को हक करो। कितना लगता है हक करने में? मुझे लगता है सेकेंड्स भी नहीं लगते, राइट? एंड पूछो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, ट्राई टू डू दैट। हो सकता है गाइस, सब कुछ पॉसिबल है। सोचना शुरू करो, पहले इंटेंशन सेटिंग करो। टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। हर चीज से ब्रेक ले लो। जो आप रेस्ट लेते हो दैट इज द ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। ओके, हियर इज टू स्लाइड टू टाइम। डू यू वांट टू ज्वाइन सेव माइंड? ओके गाइस, दिस इज अगेन अबाउट द क्या क्या, जैसे आपने आप रोजमर्रा की जिंदगी में चेक करते हो ना, ये कम है, ये इसको ठीक कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देनी चाहिए। तो डू यू फील कि आप सेव माइंड ज्वाइन कर रहे हो? आप अपने माइंड को सेव करने की कोशिश करोगे? अगर अभी भी लगता है नहीं, तो देयर आर सो वन फ्यू मोर कन्विंसिंग पॉइंट हियर। लर्न थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी।
अगर आप इस तरह की चीजें सीखोगे तो जरूर सेव कर पाओगे. तो देयर इज ऑलवेज inner critic in our mind. You are too tired. What's the point? Cancel plan. You are so useless. You can't even follow through this with simple plan. Guilt. होता है ना अपने अंदर. अरे छोड़ो यार, क्या कहे, मैं तो बोलूंगी तो मानेंगे ही नहीं. पहले से अंदर एक इनर क्रिटिक बैठा हुआ है. सो ये जो इनर क्रिटिक है ना, ये वो आंटियां होती हैं जो आपको हमेशा 4 बातें सुना देती हैं. ये उनको आप समझो. और दूसरे साइड आपके दूसरे जो शोल्डर है, उस पे आपका इनर कोच है. यू हैव टू शिफ्ट योर माइंड फ्रॉम हियर टू देयर एंड से, इवन दो आई डोंट हैव एनर्जी नाउ, पुशिंग थ्रू विल हेल्प. स्टिक टू द प्लान. ऑलवेज स्टिक टू द प्लान. जो भी आपका गोल है उससे आप कनेक्ट रहो, क्योंकि टाइम लग सकता है, बट when you start putting the intention कि ये मेरा इंटेंशन है, मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो योर माइंड स्टार्ट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज बाय इटसेल्फ. जैसे मैंने कहा, अगर गोवा जाना है तो पहले ये डिसाइड करोगे कि गोवा जाना है ना, कि पहले पैकिंग शुरू करोगे. पहले गोवा डिसाइड होगा ना, फिर टिकट्स वगैरह के बारे में सोचना शुरू करोगे, धीरे धीरे शॉपिंग करके पैकिंग भी कर लोगे. तो हमेशा अपना प्लान जो है ना, वो पहले सबसे पहले प्लान करो व्हाट इज योर गोल, और उस गोल से स्टिक रहो. थोड़ा टाइम लगेगा तो रीरूट कर सकते हो. रीरूट मतलब रास्ता बदल सकते हो, लेकिन गोल कभी मत बदलो, क्योंकि अगर आप गोल बदलते रहे ना तो कहीं फिक्स ही नहीं हो पाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे. ओके, तो रीरूट कर दो. बस नहीं मिल रही तो ट्रेन से चले जाओ, ट्रेन नहीं मिल रही तो प्लेन से चले जाओ, प्लेन में टिकट बुक नहीं हो रहा है तो वेट, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो मैं जाऊंगी, पर जाऊंगी तो गोवा ही. गोवा की जगह पौंडीचेरी नहीं चली जाऊंगी. तो इस तरह से गोल से स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाई when you start achieving your goal, actually that is the sense of achievement, right? जब आपका गोल अपने प्लान से स्टिक रहते हो तो अपने आप सेंस ऑफ अचीवमेंट आना शुरू हो जाता है. एंड देन यू रियली फील आई कैन डू दिस, आई फील बेटर फॉर डूइंग समथिंग टू हेल्प माई सेल्फ. छोटे छोटे गोल्स डेली यूजेस, मतलब डेली लाइफ में भी हो सकते हैं कि आज मुझे खुश रहना है, आज मुझे इनको खुश, इनके लिए कुछ करना है कि सरप्राइज हो जाएंगे. सो हाउ मेनी ऑफ यू वॉलंटियर? सेव माइंड को आप कितने लोग वॉलंटियर करते हैं? डू यू फील दिस इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट है. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, स्टार्ट विद योर सेल्फ. आपको किसी और को वॉलंटियर नहीं करना है, अपने आप को करना है. अगर आप परेशानी में हो, आप स्ट्रेस में हो, जस्ट पुट द अलार्म, कम, ट्राई टू कम बैक. वो अलार्म जो खतरे वाली घंटी ना, तुरंत बजनी चाहिए. छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, इस जोन से निकलो. फर्क पड़ता है. फर्क नहीं पड़ रहा होता तो व्हाई आर यू फीलिंग स्ट्रेस? फर्क नहीं पड़ता जब माइंड को, तो वो पेन नहीं फील करता, राइट? तो अगर फर्क पड़ रहा है तो सबसे पहले आप अपने आप को वॉलंटियर करेंगे, देन फैमिली एंड देन फ्रेंड. और शुरुआत आपसे होगी, क्योंकि जब आप ही नहीं शुरू करोगे तो कहाँ से चेंज स्टार्ट होगी? ट्रांसफॉर्मेशन भी यही अंदर से शुरू होता है, राइट? एंड बिग जेस्चर ऑफ सपोर्ट, if you start doing with yourself, it's a big gesture of support. तो जब आप ये जेस्चर आपके अपने खुद के लिए होगा, दूसरों के लिए तो आ ही जाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड आई जस्ट वांट टू से, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प. कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने सबसे पहले ह्यूमन लाइफ बचाई थी अभी, और आपने बचाई थी, वो हेल्प आपने दी थी. ठीक है? तो दिस योर माइंड चाइल्ड इज वेटिंग फॉर यू. इट्स क्राइंग कंटिन्यूअसली. प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प. टॉक विद योर माइंड, ट्राई टू सेव इट. इफ यू डोंट फील कि कुछ सोल्यूशन दिख रहा है, टॉक विद योर कोच, talk with your friend, with anyone. So guys, if you want to volunteer the Save Mind with everyone, that there's a form, और उसमें हम फ्री 1-to-1 एक सपोर्ट कॉल देते हैं. जैसे कि कभी लगता है यार नहीं समझ में आ रहा है, मैं किससे बात करूं, तो देयर इज अ हाफ एन आवर का सपोर्ट कॉल मिलता है जो कि कोचेस लेते हैं, लाइक सीमा, मैं होगी और बहुत सारे कोचेस हैं.
इंडिया में काफी कोचेस हैं जिनसे हम कनेक्टेड हैं, और जिसको जिस लेवल पे प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, करियर प्रॉब्लम है, जहां से आपको माइंड पेन दे रहा है, आपका माइंड समझता है ना यार ये कोई चीज है जहां पे मैं स्टक हूं, तो यू कैन डिस्कस ओवर दैट फॉर हाफ एन आवर। इवन आपको 3 कॉल फ्री मिलती हैं इफ यू डोंट गेट सोल्यूशन, सब फ्री कॉल्स होती हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। देयर इज अ फॉर्म, सीमा विल शेयर इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन फिल इट एज वेल एज यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और किसी से भी। इट कुड बी योर चाइल्ड ऑल्सो, अगर बच्चे हैं 10th एंड 12th में बहुत प्रेशर फील करते हैं, तो वो भी, उन्हें अगर गाइडेंस या काउंसलिंग चाहिए तो कर सकते हैं। दैट इज अगेन अ बोनस फ्रॉम माई साइड। आप 30 मिनट कॉल आपके लिए अवेलेबल है। आपको किसी भी एरिया में आप स्टक हो, आस्क फॉर हेल्प, यू विल गेट असाइन अ वन कोच फॉर यू on the request. Okay, thank you so much guys to listen here, and I'm really grateful for Seema जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों से मिलने के लिए, and thank you to you all कि आपने सुना इतनी देर तक। Thank you so much. कोई फीडबैक हो तो जरूर बताएं। Thank you, Induji. Very lovely insight. And what a beautifully way you have explained everything. How mind is so important for us. We very often ignore this fact, and we just take things for granted, and we just take in a lot of tensions unnecessary without caring of our mind. So it was a very deep takeaways, and I am sure each and every one of us have realized the importance of healthy mental peace and good mental health. True. Thank you Rita, thank you Salish, thank you Monica, you have very amazing tribe. Thank you Pratima. Any share? Yeah, anybody wants to share or put up things or any? Thank you, Super Coach Indo. Thank you Nita, thank you so much. So guys, बस अपना ख्याल रखो, जितना ज्यादा आप अपना ख्याल रखेंगे ना, उतना ज्यादा आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। क्लियर? तो जो केयरिंग और शेयरिंग शुरू होता है ना, सबसे पहले खुद से शुरू होता है। खुद को केयर करना शुरू करो, खुद के साथ शेयर करना शुरू करो, एंड यू आर ऑलरेडी क्लियरिटी अपने आप ही मिल जाएगा। तो शेयरिंग एंड केयरिंग, मैंने कल बहुत अच्छी सी एक प्रेयर है, कितने लोगों ने सुनी होगी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। तो हम मन की शक्ति कहीं और किसी से नहीं मांग रहे, अपने माइंड से मांगते हैं वो मन की शक्ति। तो हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, और दूसरों की जय से पहले खुद की जय। तो दूसरों की जय मतलब दूसरों को रिस्पेक्ट देने से पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, दूसरों का गुणगान करने से पहले खुद को अप्रिशिएट करो, दूसरों को रास्ता दिखाने से पहले खुद को रास्ता दिखाओ, और दूसरों को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करो। जस्ट हग योरसेल्फ बिकॉज यू आर वेरी प्रेशियस। सो आई होप ये सारे क्लाउड्स क्लियर होंगे ही होंगे, सबकी लाइफ में क्लियर होंगे, बट वी रियली नीड अवेयरनेस फॉर दिस। ये जो छोटा सा बेबी है ना, इसको चाहिए आप और कोई नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आई डिड जस्टिस विद दिस। Yes, absolutely. Absolutely. Thank Thank you you, so Super much. Coach Indo. Thank you, Rita. Thank you, Pratima. Pratima, what are you doing? Is she? Okay. I don't know. I get some vibration. She don't feeling good or something. She's having some problems. So Yeah. I just got that vibration. That's why I thought to ask. मैं पूछ तो लूँ। जो मैं कह रही हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं पूछूं तो आसपास क्या है। तो I just मेरा मन था कि पूछूं। So you are good now. You are good and you are very important always, चाहे जिस सिचुएशन में हो। ठीक है? Yes. I want to see you all. मैं सबको देख नहीं पा रही, मुझे एक स्क्रीनशॉट चाहिए था। Exactly. सबका video on Everybody, है क्या? please switch on your video. Guys, please switch on video for few seconds, Simon. I learned this thing with Seema. मैं इन सब चीजों में थोड़ा सा मैं वो आलसी हो जाती हूँ। यार चलो चलता है, बट ठीक है। आई लव दो, इतना क्यूट लग रहा है। धारा थोड़ा सा लाइट ऑन कर लोगे ना,
तो स्क्रीन डरेगा नहीं। अंधेरे से हमें डर लगता है। धारा गई, धारा ने कहा "नहीं, मुझे नहीं आना, मैं लाइट ऑन नहीं करूंगी, आई हैव टू सेव लाइट"। So, There, beautiful Dhara is. so give up big cheese. फेस पे चीज चाहिए मुझे। आई वॉन्ट अ बिग चीज, चीज। और नहीं तो पनीर भी कुछ लोग बोलते हैं भाई, जो मजा लगे वही कर लो। शालिनी मुझे वो वाला स्माइल चाहिए, ये वाला जिसमें टीथ दिखते हैं, क्योंकि ये सच वाला स्माइल है। हाँ यस, सारी सेल स्माइल कर रही होती है। प्रतिमा, आई वॉन्ट बिग स्माइल यार। हाँ 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 हाँ, आई थी अभी, आई थी ये। और यस, किसने स्क्रीनशॉट लिया? ले लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज प्लीज प्लीज। प्रतिमा मुझे ना पता है, मैं अक्सर आपको मैं बताऊं कि मेरी जो मैं ससुराल आई, तो मैं एक्चुअली विलेज में रहती हूँ। लास्ट 3 इयर्स से मैं विलेज में रहती हूँ, शादी भी गांव में ही हुई है। तो मेरे यहाँ इतना ऐसा वेल रहता है, मैं अपने ससुर जी को देख नहीं सकती थी। और अभी भी यही है कि मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे दिखती हूँ, उसके बाद दुपट्टा और सब, हेयर वेयर कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा चंपू हो जाओ ऐसा रहना पड़ता है। तो मैं फर्स्ट टाइम शादी के बाद हमारे मम्मी पापा हमको मंदिर लेकर गए, यहाँ पे ससुर जी और सासू माँ। तो मैं ही गई थी, हस्बैंड यहाँ नहीं थे। तो मंदिर गया और मैं पूरा घूंघट में पूरा मंदिर घूम रही हूँ। और मैं तो बहुत ज्यादा ही ऐसी हूँ कि मुझे फोटो क्लिक करनी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी फोटो क्लिक कैसे करूँ, कैसे घूंघट उठाऊं और फोटो क्लिक करूँ। वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हर जगह ससुर जी पीछे थे, सासू माँ आगे थी। मैं सोचा कहीं से देख लिया तो फिर तो बवाल हो जाएगा। देन एक जगह स्टेयर केस था, तो वहां हम लोग बैठ गए लाइन से। देन मैंने मम्मी का फोटो ले ले, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ लो। और मैं अभी भी घूंघट में, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि फोटो, मतलब घूंघट उठा के फोटो लो। तो मुझे वो चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने करेज दिखाया, मैंने कहा छोड़ो, 1 घंटे के लिए मंदिर है, फोटो तो ले लेते हैं, फिर 10 बातें सुन लेंगे घर जाके, लेकिन ये मूवमेंट तो नहीं आएगा ना। है, मैंने थोड़ा सा अपना पल्ला पीछे किया, शायद इतना किया, वैसे ही मम्मी ने इसको फिर से आगे कर दिया। मैंने फिर से थोड़ा सा पीछे किया, और मैंने ऐसा सेल्फी कैमरा ऑन किया, और मैंने देखा पीछे मेरी मदर इन लॉ उस सेल्फी कैमरा में दिख रही थी। एंड शुरू से ये आदत थी, इतना स्ट्रेस में फोटोज क्लिक होती थी कि मुझे लगता था कि मैं ही निकल जाऊं, या तो इनकी ले लूं या तो अपनी ले लूं, ऐसे मैं नहीं क्लिक करा सकती। और मैंने मम्मी से कहा मम्मी, मेरा कैमरे का क्लिक ना होता ही नहीं है जब तक कोई स्माइल नहीं करता। मैंने ये बोला, और मैं तब तक मैंने फोटो नहीं क्लिक की जब तक कि उन्होंने कहा हो गया, हमने कहा नहीं हुआ, उन्होंने कहा हो गया, मैंने कहा नहीं होएगा क्लिक, ये होता ही नहीं मेरे से, ये फिंगर तो मैं मतलब प्रेस करूंगी नहीं। और जब तक मम्मी ने स्माइल करना नहीं शुरू किया, और मेरे फादर इन लॉ भी पीछे ही बैठे थे क्योंकि सेल्फी में, और उन्होंने स्माइल नहीं किया, मैंने फोटो नहीं क्लिक की। और फिर अचानक से जब मैंने 10 बार, शायद 10 बार कहा कि प्लीज स्माइल थोड़ा सा और, ऐसे वाला नहीं, थोड़ा सा दांत तो दिखने चाहिए, भगवान इसीलिए दांत दिए, नहीं तो फिर देते ही नहीं वो। तो और उन्होंने स्माइल किया। आई हैव दैट पिक सीमा, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक, इतना सुंदर। मैं उसमें घूंघट में ही हूँ, बट मेरी मम्मी और पापा बहुत अच्छा स्माइल दे रहे हैं। और इतना सी, जब हम स्माइल करते हैं हम इतने अच्छे लगते हैं, अभी रियली अंडरस्टिमेट दिस पावर। और मेरे घर का माहौल, मेरी शादी को 6 इयर्स हो गया, मेरे घर में जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, आज वो एक दूसरे से हंसी मजाक करना शुरू कर चुके हैं। मेरे आने से मेरे ससुराल का माहौल बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। वाई डू आई टेक दिस क्रेडिट? एक्चुअली चेंज हुआ है क्योंकि मैंने तो सुना है इतना सारा कि ये नहीं पॉसिबल है, बोलना पॉसिबल नहीं है, हंसना पॉसिबल नहीं है, छत पे टहलना पॉसिबल नहीं है, फोन लेकर बात करना पॉसिबल नहीं है सबके सामने। वो सब बदल गया है, बिकॉज आई थॉट कि यार मैं तो नहीं ऐसे रह सकती। आई स्टार्टेड टेकिंग अ स्मॉल स्मॉल स्टेप। और मैं वो फोटो जरूर शेयर करूंगी इस ग्रुप में, क्योंकि Please. सडनली अचानक वो बात आई कि मैं घूंघट में, और मैंने कहा स्माइल करो। और आज ये टाइम है कि मैं अपने फादर इन लॉ से कभी भी बात करती हूँ तो उनको पता है कि इंदु बिना स्माइल की फोटो क्लिक नहीं करेगी। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, एवरीवन स्टार्ट स्माइलिंग, सबने ही स्माइल करना शुरू कर दिया है।
मैं क्लिक करती नहीं, मैं बहुत रिजिड हूँ, मैं फोटो ही नहीं क्लिक करती किसी की जब तक कोई स्माइल नहीं करता. Good. Very good. That's Please why. do share the pic. Yes. And so again, Dhara, please come in the light. मैंने फोटो नहीं क्लिक करी. So guys, again smile, broad smile. Yes, प्रतिमा ने. I want to see teeth. नेहा, नहीं चलेगा. मुझे दांत दिखने बहुत जरूरी है. Yeah, smile करके देखो. लो, let me take the print screenshot. Pratima, see, it's not convincing, please. नीता, थोड़ा और ज्यादा. धारा प्लीज, थोड़ा सा और प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Induji. Thank you. Love this session. Thank you so much. Thank Love you. Lovely Say session. mine. बच्चे की सुनो. और अब आप खुद फील करो कितना अच्छा फील होता है. इवन अ फेक स्माइल कैन गिव यू एनर्जी. किसी के कहने से भी जो आप हंसते हो ना, क्योंकि माइंड को सच क्या है झूठ क्या है उसे तो पता ही नहीं होता. वो तो आप जो कर रहे होते हो उसे वो बस वही पता है. तो जब भी लो फील करो ना, स्माइल. वी आर स्माइल. डोंट फॉरगेट टू वियर योर स्माइल वट एवर यू आर डूइंग. सो हैव अ बेस्ट डे है. पूरा दिन स्माइल करना. जब भी स्ट्रेस फील हो एक स्माइल दे देना. स्ट्रेस तो वैसे ही चली जाएगी गुस्सा होके. लो अभी भी हंस रहे हैं यार ये तो. हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसे ही बात होती है हमारी साइकोलॉजिकल. अभी भी हंस रहे. जाओ यहाँ तो जगह ही नहीं है इनके पास, तो मौका ही नहीं देते बैठने का. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर. Okay, thank you so much, Thank you so Induji, and all much. the participants. Thank you. Thank you. Meeting the